Okay class, good morning. So today we are going to study chapter number 9, A Tiger in the House. कहानी कुछ इस प्रकार है. There is little summary given at the beginning of the chapter. Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him home. Grandmother calls him Timothy and brings him up like a human child. And Timothy is playful and naughty. His companions are Toto, the monkey, a puppy and other members of the household. So, we are going to study about the story of a little tiger cub. His name is Timothy. So, Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in Tarai jungle near Dehra. Dehra, you know, it is talking about Dehradun. So, Timothy the tiger cub was discovered. It was found by grandfather when he was passing through the forest. He found a tiger cub and he called him Timothy, and he was found in Terai jungle in Dehradun. One day when grandfather was strolling down मतलब क्या होता है? Walking down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of banyan tree. Intricate roots क्या होता है पता है? मैं तुम लोगों को intricate roots बताती हूँ. जो सारी वो होती हैं जड़ें एक दूसरे के साथ फंसी होती है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं intricate roots. तो यहाँ पर बता रहा है कि ये जो intricate roots है of banyan tree, इसका मतलब ये है कि वो कब कहाँ फंसा हुआ था? इसी के अंदर कहीं पर फंसा हुआ था. वो अपने आप को छुपाए हुआ था क्योंकि वो डरा हुआ था. जानते हो सारे जानवर इंसान से डरते हैं. Just like that, grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. Okay? तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट के पैराग्राफ की ओर. At first the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmoud. महमूद जो था, महमूद एक तरीके कह सकते हो आप. तो महमूद क्या करता था? उसने कैसे पाला था? टाइगर को वो मिल्क से मतलब मिल्क पिलाता था. क्या करता था? मिल्क पिलाता था. Class, can you see me? Yes, ma'am. Okay. तो टाइगर था वो क्या करता था? मिल्क पिलाता था. और पूरी तरीके से he was fed by milk only and entirely on milk given to him on a feeding bottle by our cook Mahmoud. But the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. So, जब मिल्क उसको इतना ज़्यादा मतलब उसकी बॉडी पर लग रहा था कि वो दिन पर दिन क्या होता जा रहा था? दिन पर दिन फैट होता चला जा रहा था. सो इसलिए उसकी डाइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए मिल्क जो था वो ज़्यादा हैवी हो जा रहा था. इसलिए उसकी डाइट को कंट्रोल करने के लिए उसे कच्चा मटन और कॉड लिवर ऑयल दिया गया ताकि वो उसकी डाइट क्या हो सके? मेंटेन हो सके. एंड टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन एंड रैबिट्स. बाद में उसे पिजन्स और रैबिट्स भी खाने को दिए जाते थे ताकि उसकी बॉडी कंट्रोल में मतलब इन अ वे इट्स सपोज टू बी ग्रोन. मतलब जितना उसकी बॉडी को कंट्रोल करने में ग्रोथ होए, कंट्रोल में मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. Timothy was provided with two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. तो टिमोथी के साथ उसे दो दोस्त भी दिए गए थे. टू कंपेनियन मतलब क्या होता है? फ्रेंड. उसे दो कंपेनियन दिए गए थे. कौन? टोटो द मंकी एंड हु वाज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय टेल. मतलब वो इतना बहादुर था, मतलब वो जो जानवर था वो इतना बहादुर था कि वो क्या करता था? जो
यंग टाइगर था उसको उसकी पूंछ से खींच लेता था, जबकि जनरली जो अदर एनिमल्स होते हैं दे जनरली आर अफ्रेड ऑफ टाइगर, बट द मंकी वॉज वेरी ब्रेव इनफ टू पुल द टेल ऑफ द टाइगर एंड देन क्लाइंब अप। और फिर जब वो उसकी पूंछ खींचता था और फिर क्या करता था, वो चढ़ जाता था पर्दों के ऊपर। कहाँ पर चढ़ जाता था? पर्दों के ऊपर चढ़ जाता था और उसे उल्टा लटका देता था। इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और जिससे टिमोथी को गुस्सा आ जाए, जिससे कि टिमोथी को गुस्सा आ जाए। एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रल पप्पी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। तो मंकी क्या करता था, जो पप्पी था उसको भी उसकी पूंछ से खड़ा कर देता था और यंग टाइगर उसको भी उसकी पूंछ से उल्टा लटका देता था, मतलब दोनों को वो अपसाइड डाउन करके उल्टा लटका दिया करता था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ पपी। शुरुआत में तो टिमोथी जो था वो बहुत डरा हुआ था पपी से, मतलब जो डॉग था उसके बच्चे से वो डरता था। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर। और वो क्या करता था, जैसे ही वो पपी उसके करीब आता था तो वो शेर का बच्चा पीछे चला जाता था, मतलब वो खिसक जाता था पीछे, उसको इतना पपी से डर लगता था। एंड देन he would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to ridiculously safe distance। जानते हो, तुम लोगों ने कभी एनिमल्स को आपस में लड़ते हुए शायद ही देखा होगा। डिस्कवरी में अगर आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने जानवरों को आपस में लड़ते देखा है बच्चों? कभी दो बिल्लियों को आपस में लड़ते देखा है? कैसे लड़ती हैं, कोई बताएगा? कैसे लड़ती हैं, कौन बताएगा? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। नहीं, कोई और, somebody else। चलो मैं बताती हूँ। लड़ना और फाइट करने में फर्क होता है भैया। जानवर जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही नहीं है, वो कभी कभी खेलते भी हैं। तो जो खेलते हैं ना वो भी उनका लड़ने जैसा ही दिखाई देता है। जनरली हमारे लड़ने में और उनके लड़ने में फर्क होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी एक पेट है बिल्ली, ठीक है, मेरी कैट है। तो मेरी कैट की एक खास बात है, वो जब प्यार करती है तब भी वो नोच लेती है और जब गुस्साती है तब भी नोच लेती है। तो आप इसे क्या कहोगे? क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है, इट इज इंस्टिंक्ट ऑफ दैट एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल। हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एनिमल की एक फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट होती है, उसकी एक प्रवृत्ति होती है। जैसे ह्यूमन की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, उसी तरीके जानवरों की अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे ये बताओ तुम लोग, डॉग होता है, जब वो प्रेम करता है तो वो चाटने लगता है, ठीक है, और जब वो गुस्साता है तो वो क्या करने लगता है, भौंकने लगता है। लेकिन कई बार प्यार से भी डॉग भौंकता है, ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी इंस्टिंक्ट में है, मतलब वो चाहे वो अपना लव और अफेक्शन शो कर रहा हो या वो अपना गुस्सा शो कर रहा हो, वो दोनों के लिए ही बार्किंग का ही यूज करेगा। जस्ट लाइक दैट जानवरों के साथ भी होता है। जो छोटे जानवर होते हैं ना, जब वो आपस में लड़ते हैं तो वो एकदम से एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं जाते, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने पॉज से दूसरे वाले को ऐसे मार के पीछे भाग जाते हैं, फिर आगे मारते हैं, फिर पीछे भाग जाते हैं। मतलब ये उनकी प्रवृत्ति चलती ही रहती है। पहले एक बार मारते हैं डॉज, फिर पहले एक बार अपने फोर पॉज से पहले उसको मार लेते हैं, फिर पीछे आते हैं और डर जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर आगे आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कप्स होते हैं या जो पपीज होते हैं, वो इसी तरह लड़ाई करते हैं। स्पेशली टाइगर की स्पीसीज ऐसी ही होती है। जैसे कैट टाइगर की स्पीसीज में आता है, शेर भी टाइगर की स्पीसीज में आता है। मतलब टाइगर वाली स्पीसीज में जितने भी आते हैं वो सभी कुछ इसी तरीके का बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो इसी बिहेवियर की बात बता रहा है कि एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ पपी एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर। जब पप्पी उसके करीब आता था तो वो क्या करता था, छोटी सी छलांग से पीछे चला जाता था। एंड देन ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस। और फिर क्या करता था, धीमे धीमे डैश करना, मतलब दूसरे को धीमे से मारना। डैशेस एट इट, मतलब पप्पी के ऊपर डैश करता था विद हिज लार्ज फोर पॉज, अपनी फोर पॉज से वो उसको डैश करता था। एंड देन रिट्रीट टू रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस।
और फिर पीछे भागता भी था रेडिकुलसली, मतलब पहले तो मार के फिर पीछे से भाग जाता था। एंड फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, मतलब धीमे धीमे उन लोगों में क्या हो गई, दे मेक अ ग्रेट फ्रेंडशिप विद ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंडशिप Timothy allowed the puppy to sit on the back of Timothy, बाद में उसने उसको बैठने का अलाउ कर दिया था। Then one of the Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. Okay, so let's see what Timothy did. Oh, one of Timothy's favorite amusement मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन जानते हो ना बच्चों, मतलब कि टिमोथी जो था वो किस किस तरीके से आनंद लेता था। तो आनंद लेने की बात हो रही है यहाँ पर कि वो किस किस तरीके से मौज करता था, उसको अच्छा लगता था टिमोथी को। तो टिमोथी क्या करता था, लेट्स सी। पहले तो टिमोथी क्या करता था, स्टॉक करता था। स्टॉक करना मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना, वो लोगों का पीछा करता था। तुम लोगों ने जनरली घर में डॉग्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं, लोगों का पीछा करने लग जाते हैं, जो उनका फेवरेट होता है। लाइक फैमिली में इफ देयर आर 6 मेंबर्स एंड हु मोस्टली गिव्स फूड टू द डॉग विल जनरली लव टू दैट पर्सन मोस्टली। तो डॉग भी उस आदमी से सबसे ज़्यादा प्यार करेगा जिससे उसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा। ही विल रिसीव द मोस्ट लव, ही विल गिव द मोस्ट लव टू दैट पर्सन। तो उसी तरीके से वो क्या करता था, स्टॉक करता था। स्टॉक करना मतलब किसी का पीछा करना। Who would play with him, मतलब जो उसके साथ खेलेगा उसके साथ वो उसका पीछा करता था। And so when I came to live with grandfather, फिर जब मैं भी बाद में ग्रैंडफादर के साथ रहने लगा, I became one of the tiger's favorite। उसके बाद टाइगर मुझे ही अपना फेवरेट फ्रेंड मानने लगा था। And he always stalked me with a crafty look। crafty मतलब होता है अपनी चालाकी से, look in his glittering eyes मतलब अपनी चालाकी भरी नजरों से। glittering मतलब होता है चमकीली। so glittering eyes, वो अपनी glittering eyes से, and his body crouching, अपनी बॉडी से क्या करता था, क्राउच करता था। and he would creep closer and closer to me। पहले तो वो दूर बैठा रहता था, लेकिन धीमे 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 वो क्या करता था, उसके पास आ जाता था। And suddenly making a dash, अभी मैंने डैश बताया ना, क्या करते हैं, अपने हाथ से एक झटका देते हैं। Just like that he was making a dash for my feet। आप बैठे रहोगे तो वो आपके पैरों पर झटके मार के, बिल्लियां भी ऐसे ही करती हैं बच्चों, जब वो छोटी होती हैं तो वो आपके पैरों पर झटका मार के चली जाएंगी कि देखो तुम मुझे अपना अटेंशन दो, मतलब they seek attention of their master। Just like that the tiger was also doing the same and rolling over his back। फिर क्या करते हैं, पहले वो डैश करके चले जाते हैं, उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को जमीन पर रोल करते हैं and kicking with delight, और उसके बाद अपने लेग्स से मार कर, मतलब आपके पैर के साइड मार कर वो चले जाएंगे। and pretending to bite my ankles, कई बार बिल्ली जो होती है वो क्या करती है, आपको प्यार से भी नोच कर चली जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो टाइगर था वो भी क्या करता था, उसके एंकल्स को काटने का प्रयास करता था। मतलब कि अगर तुम मेरे पर अटेंशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा एंकल्स काट लूंगा, मतलब मैं तुम्हारी एड़ियां, एंकल्स मतलब एड़ियां मैं काट लूंगा। ओके, देन ही वाज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्रीवर। नाउ हु इज गोइंग टू रीड? उत्कर्षी रीड बेटा। Okay, ma'am. He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for a walk, people on the road gave us a pat. When it rained hard rain, I had difficulty keeping up with
in drawing room, and he would keep himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and starting at anybody who tried to get him off. Continue reading, continue. He had clean habits and rubbed his face with the paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by the morning. Okay. So he was by this time the size of full grown retriever. मतलब अब वो कितना बड़ा हो चुका था, वो एक फुल ग्रोन बिग कैट हो चुका था. Now he became fully grown up. And when I took him out for walks, मैं जब भी उसे वॉक्स के लिए बाहर ले जाता था, people on road would give us a wide berth. मतलब लोग क्या करते थे, हमें अच्छी खासी स्पेस देते थे. They gave us great pass, a lot of space to move out. तो लोग क्या करते थे, इतना डरते थे कि वो हमें ढेर सारी जगह देते थे तो चलने के लिए. And when he pulled hard on his chain, जब वो अपनी चेन, मतलब वो डॉग की तरह उसे ले जाता था चेन में बांध करके, तो जब भी वो उसे डॉग की तरह ले जाता था तो वो अपनी चेन को खींचने लगता था. एंड आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम. मुझे, जैसे आप लोगों ने डॉग्स को भी देखा होगा कि जो बहुत ही बिग साइज के डॉग होते हैं उन्हें भी रास्ते में कंट्रोल करना इट इज टू डिफिकल्ट. जस्ट लाइक दैट इफ नाउ इट हैड बीन a tiger, so you can understand that how much it was difficult, how much it had been difficult for the master to keep a pace with a tiger. So you know that tiger is so much body, he is strong, very strong. Okay, now so his favorite place in the house was drawing room. उसकी favorite place क्या थी, drawing room थी. And he would make himself comfortable on long sofa. So when he sit, तो वो क्या करता था, long sofa पर बैठता था. And reclining there, reclining मतलब होता है वो अपने आप को बिल्कुल एकदम लिटा दे with great dignity. मतलब वो क्या करता था, बिल्कुल फैल जाता था. फैल जाने का मतलब वो अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेच करके सोफे पर सोता था with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. और जो भी उसे उठाने की कोशिश करता था, he always snarled on them. मतलब वो उन पे गुर्राता था, गुस्साता था कि मुझे क्यों उतार रहे हो. Because he found the sofa is most comfortable for himself to sit. Timothy had clean habits. Clean habits का मतलब देखो मैं आप लोगों को बता दूं, हर जानवर जो होता है वो उसकी क्लीन हैबिट्स नहीं होती उसके पास. बच्चों क्यों नहीं होती, उसका कारण है. क्या होता है, जो कैट्स की स्पीसीज होती है उसकी खास बात होती है कि दे डोंट विश टू बी गेट डर्टी. तो वो डर्टी होना पसंद नहीं करते, तो वो अपनी सफाई स्वयं करते हैं. डॉग्स की तरह नहीं होता, जैसे डॉग्स होते हैं उन्हें सफाई में बैठना पसंद नहीं होता. और आप काऊ को ले लो, बफेलो को ले लो, और आप गोट को ले लो, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं दे डोंट हैव क्लीन हैबिट्स. बट कैट्स एंड बिग कैट्स, लायन, दे आर हैविंग क्लीन हैबिट्स. इन सब की अपनी क्लीन हैबिट्स होती हैं. वो बिल्कुल सफाई से रहते हैं, उनमें कोई गंदगी, आप उनकी बॉडी पर गंदगी पाओगे ही नहीं, बिल्कुल. ठीक है, because I have a cat, so I know about these habits. So and would scrub his face. यहाँ तक कि वो अपने चेहरे को भी क्या करते हैं, पोंछ लेते हैं. उनके चेहरे पर भी आपको कोई गंदगी नजर नहीं आएगी. Exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. वो रात में कहाँ सोता था? He slept at night in the cook's quarter. जहाँ पे कुक रहता था, कुक का नाम क्या था बच्चों? महमूद. तो महमूद के क्वार्टर में सोता था. और ऑलवेज डिलाइटेड, मतलब होता है हैप्पी होना. ही वॉज वेरी हैप्पी इफ ही वॉज बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग. जब मॉर्निंग में कुक उसे बाहर लेकर आता था, ये बात
तिमोथी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। So class, for today in this chapter this much only. Tomorrow we will complete this chapter. Okay. So now I am going to ask some question. If you are ready, kindly tell me. Are you ready, class? Yes, ma'am. Okay. Yes. Kindly revise 5 minutes for the chapter, and after that I will start asking questions. Okay.